तक के रुझानों के हिसाब से एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी और देश जो है मजबूत लोकतंत्र की ओर आगे बढ़ता रहेगा। ओवर टू कृति। Thank you so much, Archana. And of course, as we were talking, Dr. Chaudhary and Roshan Gaurji, Chanakya of Indian politics, Mr. Amit Shah, the current Home Minister, is leading from the Gandhinagar constituency with a record margin of 4,88,000. That's just the initial figures that we're getting. So once again, clinching victory. Your thoughts, sir? ऐसा अभी एक अनुमान लगा रखा है वहाँ बीजेपी ने गुजरात में कि इस बार अमित शाह जी का जो रिकॉर्ड है, जो 7 लाख का रिकॉर्ड है, उसको शायद वो तोड़ेंगे। तो हमें ऐसा लग रहा है कि जो इनिशियली अभी 4 लाख वो क्रॉस कर गए तो शायद 7 लाख तक पहुंच जाए। सर 5 लाख टच कर रहे हैं तो 7 लाख तक का उनका टारगेट है। तो मुझे लगता है कि शायद हो जाएगा। और गुजरात के लोग, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री हमारे अमित शाह हैं, उनको गुजरात गौरव मानते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए पूरा गुजरात उनको जिताना चाहता है और वो भी रिकॉर्ड के साथ जिताना चाहता है। सर टचिंग 5 लाख। Yeah, that is true because Gujarat has been the bastion of the Bharatiya Janata Party of the period. One could see that all these good governance initiatives actually started under Modi's leadership in Gujarat. So one could see that all these things are now finally disseminated to the corner of each and every part of Gujarat, and victory of Amit Shah ji could be a reflection of that good governance, model of good governance in Gujarat. Well, that's true. And talking about states specifically, sir, look at the hill states. Uttarakhand, Himachal Pradesh, Gujarat, Madhya Pradesh, 2014, 2019 and 2024. Almost 100% conversion. That is no small feat. Yeah, that is true. My main focus was that how the issues of development, governance and good governance are now affecting and connecting with the common people is to be seen in 2024 elections as well. So one could see a shift from say populism to governance, and people are quite awakened. They are the real game changers. So one could say that the real catalyst of change in today's democracy of 21st century would be the Matdata, that is voters. Yes, since morning we've been talking about the voters of the country. 64 crore voters came out to decide the fate of the candidates. And joining me, of course, again, esteemed guests. Before we talk about that, Dr. Chaudhary, just last word on the voter turnout. Of course, we've been discussing about urban apathy, rural versus urban centers, but the figures that are trickling in, we'll also do a analysis of the breakdown of the numbers. But right now, as the figures stay, where is the NDA gaining? See, again, you shouldn't go by the percentage. I think one should focus on the number, and the number 64 crores and more. They have actually voted in the electoral process. So that's a good number. It's a huge number. I mean, could see, compare the 64 crore voters and more vis-a-vis the developed democracies of the world. One could see that Indian voters are more enthusiastic, more participatory, and this voting could be seen a very credible voting. Voting is seen as a change of government or as a vote for a stable government. So from first Lok Sabha elections to the 18th Lok Sabha elections, one could see keeping this figure from say 64, 65, 66 is a good percentage and with a good number, because every year the number of voters is increasing. So the number of the voting percentage may also be the static or remain at the same, but is again an important challenge for the election commission, for Indian democracy and for all of us the voters. So what is important for us is that participation, increasing participation, enthusiastic participation for governance and good governance is an important part of Indian democracy. And this electoral process, Indian democracy, where the minimal violence, minimum disruptions and the more positivity than negativity in elections could be seen the strength of Indian democracy. Of course, absolutely. And joining me on the broadcast right now is also my colleague Preeti. Preeti, welcome. Since morning we've been analyzing the big Lok Sabha results today. Of course, we've been decoding the journey of India's Lok Sabha elections right from 1951-52 to 2024. Over to you, Preeti. थैंक यू सो मच कृति। और लगातार अब हम कह सकते हैं 5 घंटे हो चुके हैं, दोपहर का 1 बज गया है और लगातार जो टैली आ रही है आज मतगणना को लेकर वो अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं और संसद टीवी पर लगातार इससे जुड़ा जो विश्लेषण है वो भी जारी है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आलोक अग्रवाल जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि फॉर्मर मेंबर हैं प्रसार भारती के। आलोक जी, सबसे पहले आपका विश्लेषण, आपका नजरिया शुरुआती 5 घंटों में कौन से ऐसे 5 बड़े पॉइंट्स हैं जो आगे जाकर इंटैक्ट रहने वाले हैं और सबसे बड़े एक तरह से पॉइंट्स आप मान रहे हैं उन्हें अब तक की मतगणना के दौरान? सबसे पहले तो नमस्कार सबको। सबसे बड़े पॉइंट्स तो ये हैं कि आप इंडियन वोटर को
फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते. दैट इज़ द सिंगल बिगेस्ट पॉइंट. जितने भी आंकड़े लोगों ने लगाए थे दोनों तरफ से, वो सारे ही गलत प्रूव हो रहे हैं, चाहे एक पार्टी बोले या दूसरे बोले, क्योंकि वोटर ने अपने मुद्दे खुद चुने हैं और उसके बेसिस पर उनने वोट दिए हैं, और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कितने सारे सरप्राइजेस भी हमें देखने को मिले हैं. स्टेट बाय स्टेट एक कंसिस्टेंसी नहीं है. कुछ स्टेट्स में एक तरफ वेव है, कुछ स्टेट्स में दूसरी तरफ वेव है, लेकिन हर स्टेट में वेव्स है. वेरी फ्यू स्टेट्स आर नेक टू नेक. सो ये ऑब्वियसली बाद में एनालिसिस की बात होगी कि क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से लोगों ने पार्टीज़ ने अपने एनालिसिस गलत उनके पड़े. बट दो तीन ऑफ कोर्स बिग ट्रेंड्स ये हैं कि यूपी में जैसे लोग सोच रहे थे उससे काफ़ी अलग हुआ है. वेस्ट बंगाल में लोग कह रहे थे कि शायद बड़ा बदलाव आ सकता है, लेकिन वहाँ कंसोलिडेशन हुआ है टीएमसी का. और बाकी जगह मोर और लेस वही सिचुएशन रही है. महाराष्ट्र में पता था कि कन्फ्यूजन होने वाली है क्योंकि बहुत सारी पार्टी स्प्लिट हो गई थी. वहाँ पे मल्टी कॉन्टेस्ट था, तो वहाँ के कन्फ्यूजन होने वाली थी. उसकी वजह से हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो अभी भी कन्फ्यूजन है. ठीक है, तो आपने दो स्टेट्स का जिक्र किया, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल. एक राजस्थान को और जोड़ लेते हैं. बड़ी वजह क्या लग रही है आपको? यहाँ बीजेपी जिस तरह से दावा कर रही थी उस तरह का परफॉर्मेंस क्यों नहीं रहा? क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? देखिए, उसकी आई मीन डिटेल्ड एनालिसिस तो बाद में होगी जब थोड़ा और वो आ जाएगा. लेकिन मुझे लगता है कि यूपी में स्पेशली कास्ट, रिलीजन वगैरह फैक्टर बहुत स्ट्रांगली प्ले किए, जिसकी वजह से जो वोट्स का कंसोलिडेशन है किसी एक पार्टी की तरफ ज़्यादा गया. दूसरा मुझे लगता है कि कैंडिडेट सिलेक्शन में बहुत जगह, जैसे पर्सनली मुझे सुनने में आया, लोग अपने कैंडिडेट्स, लोकल कैंडिडेट्स से खुश नहीं थे. तो वो भी एक फैक्टर बना है लोगों के वोट्स चेंज करने का. तो विच ऑल्सो शोज कि लोग एक तो बड़े नेता के नाम से तो वोट देते हैं, लेकिन लोकल कैंडिडेट भी इम्पॉर्टेंट होते हैं इलेक्शंस में, और लोकल कैंडिडेट्स की वजह से वोट स्विंग्स भी हुए हैं. तो ये सब बाकी डिटेल्ड एनालिसिस आएंगे तो हम सब और उसके ऊपर चर्चा कर पाएंगे. But absolutely, sir, and I'd like to get into the specifics and the factors of these numbers that are trickling in right now. And allow me to say this, that you understand technology better than most of us here. The role that technology played, and particularly the way NDA used technology both in electioneering and also ensuring delivery of goods and services, do you think that is a big factor? Sure. Technology, digital public infrastructure has connected a lot more people to benefits from the government, not just information. And therefore, the Prime Minister himself keeps talking about direct benefit transfer, bank accounts, etc., all the various services being made available to citizens directly. So that's made definitely a big difference. But when it comes to voting, people look at criterion beyond that, which could be to do with caste, race, religion, etc., which can sometimes swing votes. But despite that, NDA touching 300 mark is no small feat. Absolutely. I mean, that is something I think a lot of people, all of us, tend to get carried away with the narrative which is being built. But the fact is that NDA is going to get a clear majority. Absolutely. Decisive majority. And for the third a consecutive term, sir. And at the end of 3 terms, there is always a sense of people want change. There are so many new voters, crores and crores of new voters who are, coming into the fold of politics and, voting for the first time. And the way of looking at things may be very different. So yes, things change, and despite that, it's highly creditable. And frankly, if you look at the next party, is struggling to cross even 100 seats. Right? While BJP is close to 250 by themselves, maybe by the end of the day they'll cross that. So that by itself is highly creditable. That's true.
मनोज मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका भी। आप अभी जुड़े हैं, इसलिए शुरुआती कमेंट आपका भी, शुरुआती प्रतिक्रिया जो अभी तक ट्रेंड्स और रिजल्ट जो हम लगातार देख रहे हैं। तीसरी बार एनडीए सरकार बनाती दिख रही है, जबकि इंडिया की गठबंधन की तरफ से उसे टक्कर मिली है। किस तरह से आप इन नतीजों, इन ट्रेंड्स को एनालाइज कर रहे हैं? देखिए, ये नतीजे अपने आप में बहुत दूर की उपलब्धि है। कोई भी सरकार देश भर में, इतनी विविधता वाले देश में तीसरी बार लगातार चुनाव जीत जाए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री ने कई जगह अपने इंटरव्यू में कहा भी कि ये 400 का नैरेटिव था, लेकिन अगर एनडीए सरकार बन रही है बहुमत से, तो ये बड़ी उपलब्धि है। कई चीज़ें ऐसी, जैसे बीच में हम लोग खुद ही मान के ये चल रहे थे कि 300 के आसपास रहेगा एनडीए, 320, 315 आसपास पहुंचेगा। अब फाइनली रिजल्ट आएगा तो हो सकता है कुछ आगे पीछे हो। ये एग्जिट पोल आने के बाद से ये थोड़ा सा भ्रम हुआ कि 400 पार, जो प्रधानमंत्री और भाजपा जो कहती थी कि एनडीए 400 पार, वो आएगा, वैसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसलिए ये हम लोग चर्चा दूसरे तरह से कर रहे हैं। लेकिन लगातार तीसरी बार भारत जैसे विविधता वाले देश में सत्ता में आना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और कहीं ना कहीं सरकार ने जो काम किए वो लोगों तक पहुंचा है। अभी जब रिजल्ट को आप प्रदेश के हिसाब से देखें, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, 2-3 राज्यों, पश्चिम बंगाल, जो अपेक्षित भाजपा के लोग, उससे नतीजे थोड़े से कम आए हैं। हो सकता है अभी और बदलाव होंगे, लेकिन कई राज्यों में उसी तरह के नतीजे हैं जैसा 2019 में आया। इसलिए ये अभी कहना ये सतही होगा कि ये सरकार के खिलाफ मैंडेट है। सरकार के खिलाफ मैंडेट, हाँ, निश्चित रूप से कांग्रेस डबल से ट्रिपल पे पहुंची है, और हो सकता है 5-10 सीटें अलग जीते, लेकिन वो कहीं राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी दल एक अकेला भाजपा को न चुनौती देने की पहली स्थिति में था, और इस चुनाव ने तो और साबित कर दिया। साथ में जो विधानसभा के नतीजे आए हैं, उसने भी ये साबित कर दिया कि अभी इस देश में नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का विकल्प आसानी से है नहीं। Absolutely, the very precise point that you mentioned there, sir. I'll take it to you, Mr. Agarwal. Since 2019, there's a new phrase in our lexicon, in India's electoral lexicon, TINA factor. There is no alternative. I think that is the biggest reflection today in the numbers that are trickling in. This is the point where I tend to disagree, right? Sir. I mean, if the voter wants, and they are showing in places that if they want to select an alternative, they go for the alternative. I don't think Mr. Modi is winning because he is the TINA factor. He wins because what he delivers to the country and to the citizens of the country, right? I mean, we all know उनकी उपलब्धियां क्या है और क्या क्या इस सरकार ने देश के लिए किया है. सो देयरफॉर दैट इज समथिंग आई डोंट थिंक it's really about deliverance. It's about his leadership ability which makes people come and vote for him. It's not that there is no alternative. So there are two divergent views, sir. आपसे समझना चाहूंगी. नहीं, निश्चित रूप से केवल ये कह देना कि इनका विकल्प नहीं है इसलिए जीते हैं, पूरी तरह से ये सही नहीं है. इन्होंने जो काम किया उसका वो डिलीवर हुआ. वो जो उनके समर्थक हैं वो मानते हैं कि वो जो मोदी की गारंटी वो कहते हैं वो सक्सेस हुआ. इसको काउंटर करने के लिए अपोजिशन ने पूरे देश में अभियान चलाया कि ये जो कहते हैं वो झूठा दावा है. लेकिन रिजल्ट से ऐसा लग नहीं रहा है कि उनके दावे को झूठा माना गया. और बहुत सारी चीज़ चेंज होते हुए हम लोगों ने पत्रकार के नाते भी देखा है. भाई निश्चित रूप से हर घर में रसोई गैस पहुंचाना, हर शौचालय बनाना, जिसको इस तरह की तमाम चीज़ें जो नीचे स्तर पर बदलाव, बड़े बदलाव तो हुए ही, लेकिन एकदम नीचे तक आम आदमी का बैंक में अकाउंट खुले, सीधे महिला के खाते में पैसे जाए, मकान बने, उसमें भ्रष्टाचार कम हो, ये डिलीवर होता वो हमने देखा. या 80 करोड़ लोगों को राशन देना, ये बातें केवल हवाई नहीं थी जैसे नेताओं के बारे में एक आम धारणा है. नरेंद्र मोदी ने उससे विपरीत जाके जो कहा उसे किया और उसका फायदा उन्हें मिला. तीसरी बार निश्चित रूप से ये जो हम लोग मानते हैं कि सरकार के खिलाफ जो वातावरण बनता है उसका थोड़ा सा नुकसान हुआ. और वो 303 का जो मैजिक फिगर था
पिछली बार भाजपा को उसको क्रॉस करते हुए अभी नहीं दिख रहा है, जो एक उम्मीद लोगों में बंधी थी। लेकिन जीत जाना ये अपने आप में इस देश में बहुत बड़ी So उपलब्धि है। Preeti, as our panelist is saying that it's ultimately about delivery of goods and services. और ये जो सबसे बड़ी बात है ध्यान में रखने वाली कि लगातार ये तीसरा चुनाव है बिल्कुल। जो एनडीए जीत रहा है और बीजेपी जिसमें सबसे बड़ी पार्टी बनकर दोबारा तीसरी बार उभर रही है। इस बीच आलोक जी थोड़ा सा समझना चाहूंगी क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उस लोकतंत्र में आम चुनाव हुए जिसके नतीजे आ जा रहे हैं, लेकिन उससे जस्ट पहले जिस तरह से इलेक्शन कमीशन और ईवीएम को लेकर बातें सामने आई, वो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए उसे कैसा संकेत आप मानते हैं? ये तो बिल्कुल ठीक नहीं था कि आप देश के सारे इंस्टीट्यूशंस को क्वेश्चन करें और उनके एक एक एक्शन के ऊपर आप क्रिटिसाइज करें, वो लोकतंत्र के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन आई थिंक फुल क्रेडिट टू ईसीआई कि उनने अपना मान मर्यादा पूरे समय बना के रखा। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईसीआई की टीम ने जैसे अपने आप को कंडक्ट किया, बिल्कुल मतलब स्पॉटलेस, और जिस तरीके से उन्होंने कंडक्ट किया, इतना बड़ा इलेक्शन, हमारा देश में जो इलेक्शन होता है इट्स वो सारे डेटा पॉइंट्स कल उन्होंने शेयर किए थे, जो स्केल है, जो कॉम्प्लेक्सिटी है पहाड़ों में, दूर दराज के इलाकों में एक्सेट्रा, इज अनप्रेसिडेंटेड। और आप काउंटिंग देखिए कैसे स्मूथली आज चल रही है, और शाम को सुबह भी सामने आकर बोला गया कि जो चाहे एक्सेस सबको दे दिया गया है। बिल्कुल वीडियोग्राफ कर सकते हैं आप। एब्सोल्युटली कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट, सब जगह कैमरा फीड्स अवेलेबल है, 100% ऑफ द काउंटिंग स्टेशन में लाइव कैमरा फीड्स अवेलेबल है, सारा डेटा लाइव अवेलेबल है उनके वेबसाइट पर। तो इस लेवल पे मतलब बाकी देशों में इलेक्शंस होते हैं तो इतनी ट्रांसपेरेंसी और इतना स्केल तो होता ही नहीं है, कई नेता इतनी तो टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं उस होता। बीच में चुनाव हो रहा है। दुनिया में जब सबसे बड़ा चुनावी साल ये बोला जा रहा है, तमाम ऐसे देश हैं जहां बड़े नेता जेल में बंद है, उसके बाद चुनाव हो रहा है। कितना स्वस्थ लोकतंत्र है इस पूरी प्रक्रिया के बाद समझा जा सकता है भारत में, और बार बार ये बताने की जरूरत भी नहीं है। लगातार इसकी जो मिसाल है वो सामने आती रही है भारत में। अब मैं थोड़ा सा उड़ीसा की तरफ चलूंगी क्योंकि वहां विधानसभा चुनाव भी है। वहां के नतीजे क्या संकेत दे रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं? तो क्लियरली अगेन उड़ीसा में वहाँ की जनता को बदलाव चाहिए था। इतने सालों बाद बीजेडी का इस तरीके से जो चेंज आया है, ये भी काफ़ी हिस्टोरिक है। वहाँ पे उड़ीसा में मैंने ट्रैवल किया है कुछ साल पहले तक वगैरह, वहाँ नवीन बाबू और बीजेडी के अलावा कोई बात ही नहीं होती थी। मतलब वो नवीन बाबू वॉज उड़ीसा, उड़ीसा वॉज नवीन बाबू, ये बहुत बड़ा देयरफॉर उस हालात में बीजेपी ने जो किया, और ये आज नहीं हुआ है, ये कई सालों से काम हो रहा है ग्राउंड पर। बीजेपी के लोगों ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है और उसका नतीजा ये है कि आज उनको वहाँ सक्सेस प्राप्त हुई है। और सिमिलरली आंध्रा भी आप देखें अगर तो एनडीए मतलब क्लियर थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ आंध्रा में भी सरकार बनाने वाली है। तो आप स्टेट्स अगर देखें, जितने भी स्टेट इलेक्शंस अभी हुए हैं तो वो तो सारे बहुत क्लियरली एनडीए के साथ ही गए हैं। मनोज जी, उड़ीसा में असल में जो बरसों से भाजपा के लोगों में छटपटाहट थी कि हमें अपने दम पर चुनाव लड़ना है, और वहाँ के कई एमपी कई बार जाने का मौका मिला उड़ीसा, वहाँ के लोगों की नाराज़गी थी कि हम अपनी बात अपने हाईकमान को डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं कि वहाँ हम अकेले लड़के जीत सकते हैं। संयोग से इस बार ऐसा वातावरण बना है। दूसरा, नवीन पटनायक जी की जो शारीरिक हालत है वो कमज़ोर है। अपना वो विकल्प उन्होंने ऐसे व्यक्ति को चुना जो वहाँ के लोगों को स्वीकार नहीं है। ये तमाम कारण बने, और सबसे बड़ा कारण ये बना कि लोगों तक ये मैसेज गया कि यहाँ भाजपा की सरकार न होने का नुकसान हो रहा है, तो इसलिए लोगों ने वहाँ अब की बार परिवर्तन के लिए वोट दिया। काम तो वहाँ था ही, पहले से भी अच्छा काम था, और कई चीज़ें इस बीच में हुई हैं। राष्ट्रपति उड़ीसा से हुई, कई मंत्री बने, आदिवासी इलाकों में कई काम, बड़े काम कराए सरकार ने, तो बहुत सारी चीज़ें किया ही है नरेंद्र मोदी सरकार ने। और लगातार प्रधानमंत्री का जाना, खैर प्रधानमंत्री ने जितनी सभाएं देश भर में की हैं, मुझे लग रहा है किसी प्रधानमंत्री ने इससे पहले कभी सोचा भी नहीं होगा, करना तो दूर की बात है, कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे चुनाव दौरान में, अभी वो चुनाव आयोग पर जो सवाल हुआ था वो
मैं उसमें एक लाइन केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह का आचरण इस पर अपोजिशन ने किया है उसको कंडम नहीं, क्रिमिनल ऑफेंस है। आप चुनाव आयोग की कार्यप्रति पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे कुछ परसेंट ऐसे मतदाताओं का होता है जो घोषित रूप से किसी पार्टी के सपोर्टर नहीं होते, वो आखिरी समय में अपना मूड बनाते हैं, वो वोट देने गए नहीं। इसलिए अपना मानना यह है कि कुछ परसेंटेज वोट जो नीचे आया है उसमें एक बड़ा कारण चुनाव आयोग पर सवाल उठाना है, केवल गर्मी कारण नहीं रहा। Absolutely, Mr. Agarwal, as they say, it is very convenient for the opposition. If you're winning, the EVM is not manipulated. If you're not winning, the EVM is manipulated. Right. Actually, all these narratives also then give an opportunity to our enemies. And when I say enemies, nations, global enemies. External enemies. External enemies. And we have seen the number of anti-India pieces in global publications, and recently we have seen reports from Meta and OpenAI talking about how they have been influenced by other countries. So all this, if we keep creating criticism internally, then it gives opportunity to our enemies to discredit India, and that doesn't help us. As a nation, whether party A wins or party B wins, we want to progress as a nation. I'm sure every party wants more foreign investment to come in, our economy to grow fast, etc. Nobody is saying we don't want the economy to grow fast, but if you create a negative narrative about the country, then international companies will get scared. So they have to be careful going forward as responsible politicians, whether they are in power or outside power. They have to ensure that the narrative is pro-India. That's true, whether it is this side or that side. Right. But look at the incidents of violence also, plummeted like never before. That I think itself is a huge victory and huge achievement for Election Commission of India. Absolutely. I mean, that is the most creditable thing. Elections used to be a fearful thing, especially in certain parts of the country, that this will happen, that will happen. Look at J&K. I mean, zero violence, record turnout in 4 decades, and people are so happy that they have got this. It opens up opportunities to create the state elections and so on. Even state like West Bengal, there were some incidents, etc., but much less than what happened during the state assembly elections and so on, and absolutely nothing at all anywhere else. So highly creditable. That's true. मनोज जी, थोड़ा सा अगर जैसे मैंने कहा 5 घंटे से ज़्यादा का वक्त है, थोड़ा सा आगे की राह को समझना चाहें तो 2 बड़ी चीज़ें हैं जो दिमाग में आती हैं कि क्या जो इंडिया गठबंधन है वो एकजुट रह पाएगा, और दूसरा क्या एनडीए अपने कुनबे को बढ़ाने की कोशिश करेगी? नहीं, निश्चित रूप से मुझे अभी लग रहा है फाइनल रिजल्ट आएगा तो ज़्यादा और साफ हो पाएगा। अब मेरा मानना ये है कि अभी भी जो इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा दल कांग्रेस और एनडीए का सबसे बड़ा दल भाजपा, इन दोनों में संख्या डबल से भी ज़्यादा है। इसलिए ये अभी कल्पना से बाहर की बात है कि आसानी से कोई और सरकार बनाने का दावा कर सकता है, और निश्चित रूप से बहुत सारे ऐसे घटक दल हैं जो इंडिया में हैं, इंडिया अलायंस में हैं, जो सरकार बनाने के लिए इसमें सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर के पार्टी, वो शुरू से उन लोगों का कोई ऐसा कुछ रहा ही नहीं, ना बीजेपी से परहेज, ना उनसे, ऐसे बहुत सारे दल अभी आएंगे जो बन सकते हैं। और राजनीति में तो मतलब कोई भी चीज़ 2 और 2 4 होता ही नहीं, वो तो हर समय अनिश्चितता का खेल है। जैसे क्रिकेट के लिए कहते हैं, उससे भी बड़ा क्रिकेट राजनीति है कि वो जब तक आखिरी बॉल न फेंका जाए तब तक। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि अभी ऐसा कुछ भी मानना जल्दीबाजी होगी कि कुनबा बिखरेगा और ये होगा, लेकिन अभी तक तो मुझे यही लग रहा है कि आसानी से एनडीए की सरकार बनेगी, और आखिर आते आते ये संख्या 300 के आसपास ज़रूर हो जाएगी। हाँ, उसमें ये ज़रूर देखने की बात है कि बीजेपी की संख्या अगर 240 से नीचे गई तो उन्हें थोड़ा सा संघर्ष जाएगा। Well, of course, it is too early to talk हाँ about जी, that. लेकिन अभी ये कहना बहुत जल्दीबाजी होगी, लेकिन तब भी अंतर रहेगा। मान लीजिए 100 कांग्रेस का है
और 240 अगर भाजपा का है तो डबल से भी ज्यादा का फिगर रहेगा। Of course. हाँ, तो इसलिए But a very interesting phase that you shared with us, sir. There are no permanent enemies and no permanent No. friends in politics. Oh. Mr. Agarwal, your thought on that? Yeah, absolutely. No permanent friends and foes in politics. We have seen enough and more instances, and we see that all the time. So you can't rule out any instance where party A will go to one block or the other block, etc. But my personal feeling is that these may be small groups, small parties with 3-4 seats, etc. The large blocks, I think, are ideologically very different. That's true. Who are aligned to very clearly. The two big parties are BJP, which is biggest party by far, and then the Congress, and the others are significantly smaller. And ideologically, I think any of the larger parties, the regional parties, will find it very difficult to switch their sides. So I see very little likelihood of that happening. मनोज जी, हमने शुरुआत में जब कुछ राज्यों की बात कर रहे हैं, यूपी पे बात की, राजस्थान पश्चिम बंगाल पे बात की, केरला में भी एक हिस्ट्री बनने जा रही है ऐसा दिख रहा है। केरला में बीजेपी का खाता खुल रहा है। देखिए, केरल में जो केरल जाने का बहुत बार मौका मिला, वहाँ एक वर्ग ऐसा है शुरू से जो भाजपा का समर्थक है, लेकिन वो चुनाव आते आते जैसे ध्रुवीकरण का जो चुनाव होता है, जैसे फ़ायदा आपकी बार इन्होंने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मिला है कि उनके वोट गोलबंद हो गए। केरल में वो ध्रुवीकरण 2 ही ग्रुप में होता था, कांग्रेस और कम्युनिस्ट में। वहाँ बीजेपी इसलिए पिछड़ जाती थी। पिछले चुनाव से थोड़ा सा जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उससे थोड़ी आइडेंटिटी बीजेपी ने अपनी बनाई। चुनाव भले नहीं जीत पाए, लेकिन वहाँ एक अपनी प्रेजेंस अपनी दिखाई, और इस चुनाव में वो उससे और मेरा मानना ये है कि जैसे वहाँ मतलब यूनिक चीज़ें हैं वहाँ की, कि वहाँ कांग्रेस के जो रैली में अगर आप शामिल होंगे तो आपको उल्टा लगेगा कि यहाँ हम हिंदू विरोधी, देश विरोधी नारे लगते हैं, और कम्युनिस्ट पार्टी में वंदे मातरम के नारे लगते हैं। तो वहाँ का फिनोमिना और बंगाल का फिनोमिना में एकदम आसमान जमीन का फ़र्क है। और मुझे लग रहा है कि इस जो अंतर का फ़ायदा भाजपा वहाँ अपनी लाइन वही रखी हुई है जो कभी बदली नहीं, लेकिन धीरे धीरे लोगों को यकीन दिलाने में दूसरा लीडरशिप अपनी बेहतर आई है। जैसे उसी से साथ लगा हुआ जो तमिलनाडु राज्य है, वहाँ भी इनको एक बढ़िया नेता मिला है जिसने वो अन्नामलाई ने जिसने अच्छे ढंग से वहाँ ऑर्गेनाइज किया है। बाकी दक्षिण के राज्यों में भाजपा ने अपनी अच्छी पकड़ बनाई ली है, लेकिन धीरे धीरे वहाँ हुआ है। भाजपा के लिए जो इस चुनाव में थोड़ा सा एग्जिट पोल के चलते, इसके चलते मैं अभी भी ये दावे के साथ कहता हूँ, एग्जिट पोल के पहले जो मनस्थिति थी वैसे ही रिजल्ट आ रहे हैं। वो हिंदी भाषी कुछ राज्यों में थोड़ा सा बदलाव जैसा दिख रहा है, वो भी एग्जिट पोल के चलते। But they're still touching 300. जी. And let's wait for the final figures. But Mr. Agarwal, a very interesting point that Sir pointed out, of course, about Kerala. So we're seeing a very interesting trend again, that after Bengal, after Tripura, the BJP is unseating the bastion of the left, and now it may just open its account in Kerala as well. Yeah, so I think Kerala, number one, the PM Modi has spent his personal time a lot, and he's gained a lot of popularity. Very recently I was in Kerala, and I think his popularity is beyond the number of votes they've got. That is my feeling. And they had some of their best candidates out of all India in Kerala. These are really strong names. Look at MOSIT. That's right. So, people who themselves have good identity, they have contributed a lot in their fields, etc. So, they've got really good candidates, and these are the candidates who are winning as of now, at least as per the trends. So, that's the entry point. I think they made really strong effort in TN also. The results may not finally be what the exit polls were suggesting, but I think they've been able to break open the market, and popularity of the PM again is what is taking that forward. Again, strong local leadership being developed. These are states where there were no strong faces locally for BJP at all. So that's the first good sign, and then over a period of time you will find that these local leaders start increasing their popularity, and then they'll start winning elections. So probably BJP, the top leadership of the BJP gave the legroom, the leeway to the local leadership, both in Kerala and also in Odisha, and that's why we are seeing these results.
That's right. And I mean, net, if you look at it, BJP, NDA is still winning almost all the states in the country. That's true. Right. I cannot deny that. So, offhand, I think they are winning more than 80% of the states. Right. So they have the majority seats in these states. So that goes to the credit of a truly national party and a national consortium which has been able to break through bastions which they could not earlier, which were either very strong Congress bastions or regional bastions. And I think barring with Tamil Nadu and Kerala, I think every other state BJP is the single largest party. That's true, sir. रीजनल पार्टीज के लिए क्या मैसेज है अभी तक? नहीं, रीजनल पार्टी के लिए वही है कि उसका अपना कैरेक्टर उनको बदलना होगा। भाई रीजनल पार्टी में एक बड़ी सफलता तो 2 ही राज्यों में भी दिख रही है ना, कि वो पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में। बाकी रीजनल पार्टी तो बहुत बड़ी सफलता, लेकिन वो ये है कि वो अपने को ढंग से एसोसिएट करें और राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़े तो उनका विस्तार होगा। लेकिन अब जैसे आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी खो ही गई इस चुनाव में, लगता है सही, फाइनल रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा जिसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था। तो मुझे ये लग रहा है कि इस चुनाव से अभी फाइनल रिजल्ट आएगा तो, लेकिन कई मैसेज अभी निकल के आएंगे कि वो आप अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश करें रीजनल पार्टी, और उसका लाभ होगा। जो आप दायरा बढ़ाने की बात करें मनोज जी, यही क्या कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी काम किया? MY फैक्टर से आप बाहर निकले, 10% सीट सिर्फ दी तो आपको फायदा मिला? निश्चित रूप से, जिस तरह से दृष्टिकोण को बढ़ाने की आप बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से। और देखिए ना, हम लोगों को ये लग रहा था जैसे वो बार बार अपना उम्मीदवार बदल रहे थे, समाजवादी पार्टी, तो ये लग रहा था कि वो हारने की ओर है, लेकिन उन्होंने कई प्रयोग किए, जैसे वो चुनाव अच्छा हो गया। अब जैसे मेरठ सामान्य सीट थी, वहाँ उन्होंने दलित उम्मीदवार खड़ा किया। इस तरह से कई उन्होंने चीज़ें की, या बढ़िया से वो गठबंधन चला कांग्रेस से, तो उसका लाभ कहीं ना कहीं एडिशनल वोट मिलके उनको फायदा हुआ, और उतने ही वोट से नतीजे बदलते हैं। कोई लंबा चौड़ा वोट होता नहीं, 25-30% होता नहीं, 5 से 10% वोट में के स्विंग होने से इधर होने से रिजल्ट पर बहुत असर पड़ते हैं। कुछ ही सीटें होती हैं जो 2 लाख 3 लाख 4 लाख से आप जीतते हैं, बाकी सीटें तो 50,000 से 1 लाख पर जीती जाती है। तो वो थोड़ी बहुत सावधानी से, लेकिन अब फाइनल रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। अगर भाजपा की सीटें 250 पार करती हैं या उसके आसपास रहती हैं, तब तो फिर से ये साबित होगा कि तमाम कोशिश के बावजूद तीसरी बार इनको सत्ता में आने से रोक नहीं पाए लोग। Mr. Agarwal, we are discussing a very important aspect of regional state traps. A mixed day for the regional state traps. Look at Right. Odisha. You were in power, and if these numbers remain, it could be a game changer for the BJP in the state. Right. Look at Andhra Pradesh, YSRCP. If you remember the euphoria with which the YSRCP came to power, that seems to have fizzled out. So Right. mixed reaction, a mixed day for the regional state traps in the country. Yes, and I think it's kind of difficult at this stage to paint it with one brush, right? Because while BRS, YSRCP have not done well, even RJD in Bihar have not done well, but Samajwadi has revived itself, right? So it's kind of difficult to say. Some more deeper analysis needs to be done, but I think what is coming very clearly is that standalone, the only success standalone has been TMC, which has done well, Precisely. right? While they are part of the India bloc, but they decided to fight the elections on their own, and they have done well. But every other place, the parties, regional parties, which aligned with one of the two blocs and worked closely with them, have done relatively better, and all the others who were trying to maintain independence have fizzled out. Odisha being the case in point. Odisha, Andhra, and तरह का तालमेल बेहतर बना। वो उत्तर प्रदेश के लिए तो आश्चर्यजनक लग ही रहा है कि वहाँ कैसे ये कॉम्बिनेशन ठीक से काम नहीं किया, लेकिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया, और वो बार बार मुझे लग रहा है कि वहाँ ऐसी स्थिति देने की बना ली है उन्होंने। जैसे ये माना जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान को हटा के आप
किसी और को मुख्यमंत्री बना रहे हैं तो शिवराज सिंह चौहान लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे तो उसका असर पड़ेगा। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने जो भूमिका लोकसभा चुनाव में अदा की, उससे मुझे लग रहा है वो सारी अटकलों पर विराम लग गया। उनको लगा कि नहीं, ये तो पार्टी के साथ ही है, पार्टी ने जो फैसला किया उसमें। जनरल बीजेपी में यही होता है कि आमतौर से विरोध बगावत बहुत सार्वजनिक होती नहीं, लेकिन वो मैसेज और बेहतर गया तो उसका परिणाम निकला है। अब आगे देखिए। और आप आलोक जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को लेकर क्या कहेंगे आप? इतना अच्छा परफॉर्मेंस बीजेपी का, क्या वजह? एक्चुअली आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ देखें तो अपार्ट फ्रॉम छत्तीसगढ़ में जो लास्ट असेंबली इलेक्शन में हुआ था 2019 के इलेक्शन में या 2018 के असेंबली इलेक्शन में भाजपा वहाँ हार गई थी, बट उसके अलावा आप देखें तो पिछले 20-25 साल में बहुत कंसिस्टेंट रहे हैं ये दोनों ही स्टेट्स भाजपा के लिए। इस मतलब जब भाजपा की सेंटर में सरकार नहीं थी 2014 के पहले, तब भी ये दोनों स्टेट जो हैं वो भाजपा के बड़े स्ट्रांग थे। और जैसा मनोज जी ने कहा कि वो वहाँ पे लोकल संगठन वगैरह बहुत स्ट्रांग है बीजेपी का, और वहाँ पे कोई रीजनल पार्टीज़ नहीं है इन दोनों स्टेट्स में, तो उसकी वजह से कन्फ्यूजन वगैरह नहीं होता है। तो इट इज़ अ क्लियर फाइट बिटवीन द टू। और लोकल स्टेट लेवल पे गुड गवर्नेंस भी रही है, राइट, तो उसकी वजह से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। शिवराज जी ने बहुत अच्छा काम किया अपने पूरे इतने लंबे कार्यकाल में। वहाँ पे छत्तीसगढ़ में भी पहले रमन सिंह थे, उनने भी अच्छा काम किया। तो दैट entire factor, you know, people still trust the BJP governance, and therefore they keep coming back. Let's also talk about the hill states of Uttarakhand and Himachal Pradesh. Traditionally, we've seen that these states are flip states. They repose confidence in one party, and then of course they show that party the door. But I think BJP has breached that trend, particularly in Uttarakhand, even in the assembly elections. And right now, even as the numbers are coming in, we are seeing there's full conversion in favor of the BJP in these two states. I think very different reasons. Uttarakhand again is a story of consistency, right? So there has been no change, right? 2014, 2019, and now it's been a clean sweep by the BJP. And the last two assembly elections also BJP had significant seats there. So Uttarakhand has been very consistent. I think Himachal is a case of missed opportunity for the Congress. They won the assembly, but they have created, you know, so much turmoil. People are unhappy with the way they have been running the local government. Their MLAs themselves are unhappy and they quit the party. So people see that disturbance and they say, we don't want this, we want very stable. And of course, you know, some of our strongest leaders in the country come from Himachal, and therefore they have their own standing. You know, Anurag ji has his own standing, and Mr. Nadda ji has his own standing. So they are powerhouses, you know. So that pride also the locals have, that our leader is playing a major role at the national level. Precisely. थोड़ा सा अब नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलते हैं। वहाँ के नतीजे या ट्रेंड जो हैं वो कितने मायने रखेंगे नॉर्थ ईस्ट पे? जिस तरह का फोकस, जिस तरह का काम लगातार सरकार ने किया है, उस मैंडेट को आप कैसे देखते हैं? 2 राज्यों में नतीजे अभी 2 जून को ही आए। वही वो विधानसभा तो लगातार वहाँ तो कई चुनाव से ये साबित हो रहा है कि पहली बार कोई केंद्र में ऐसी सरकार बनी है जिसने वो नॉर्थ ईस्ट को भी भारत का हिस्सा मान के वहाँ डेवलपमेंट के काम किए, और वहाँ के लोग जैसे काम के प्रति सम्मान देने के लिए लगातार चुन रहे हैं भाजपा को। और मुझे लग रहा है ये सिलसिला बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। जिन राज्यों में भाजपा का नाम लेवा नहीं था, उन राज्यों में सरकार बन रही है, लगातार चुनाव जीता जा रहा है। तो निश्चित रूप से काम के आधार पर, बल्कि ये भी सही है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस से सीधा मुकाबला हुआ, एक राजस्थान अपवाद छोड़ दीजिए, कांग्रेस को जो सीटें मिली हैं वो सब ऐसी राज्यों से मिली हैं जहाँ सीधा मुकाबला भाजपा से नहीं हुआ है। भाजपा कांग्रेस में जहाँ सीधा मुकाबला हुआ है, एक आध जगह अपवाद है, नहीं तो सब जगह कांग्रेस हार रही है। Absolutely, sir. Please hold your thoughts there. Joining us right now through the digital platform, of course, is Rajya Sabha MP, former Rajya Sabha MP, Mr. Anil Agarwal. Sir, welcome to Sunset TV, and thank you so much for joining us. Sir, am I audible, Mr. Agarwal? Yes, how are you?
All well, sir, all well. A good day for you, of course. Hat-trick for your party, for NDA. Clinching third consecutive victory, sir. Your first reaction? Yeah, thank you. No, it's good that we are winning, but we were expecting more. Our honorable leader, Shri Narendra Modi ji, Home Minister Shri Amit Shah ji, Nadda ji, central leadership did very well. They did very hard work. But in some of the states where we were expecting more, could not do better. Like Uttar Pradesh, we were expecting that we will have more seats from Uttar Pradesh, but it's not doing so well. And I feel that state leadership and state Sangathan, they could not do whatever we were expecting from them. Nonetheless, sir, जीत होती है. मनोज जी, after all, अगर 300 का आंकड़ा छूती है एनडीए तो जीत है. जीत है नहीं 272 ही. जी. हाँ मैं जी का आंकड़ा 272 की बात पहले छू चुकी है. हाँ। अभी जो हम देख रहे हैं वो 300 टच कर रही है. मैं जी का आंकड़ा तो 272 है. और अरे जो जी। जिन लोगों से पहले अलायंस करके चुनाव एनडीए गया भाजपा, वो तो साथ हैं. इसलिए मुझे लग रहा है कि वो तो मतलब जीत है, इसमें कोई बहस ही नहीं. अच्छी जीत है. अब हम लोग एग्जिट पोल के आधार पर मान के चल रहे थे कि 400 पार, तो वो तो अलग विषय. ये जीत है तीसरी बार. जो अब तक के नतीजे, आंकड़े, ट्रेंड्स जो भी दिख रहे हैं, ये तय है कि जीत है. लगातार तीसरी बार सरकार आ रही है. ये देश के लिए क्या संदेश है? जिस तरह से हम एक विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, उसे जल्द से जल्द अचीव करना है. तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात है, उसके लिए क्या मैसेज है? कैसे काम आगे निश्चित बढ़ेगा? रूप से जो प्रधानमंत्री ने वायदे किए हैं कि अब बड़े काम होंगे, वो हम लोगों को ये लग रहा है कि 2-3 बड़े काम, जैसे तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे हम दुनिया का. बड़ी आबादी, हम दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाले देश में शामिल, चीन को भी पीछे न छोड़े दें. तो एक तो ये अचीवमेंट. दूसरा, और जो उन्होंने लोगों से कमिटमेंट कर रखा है, यूसीसी, सिविल कोड या कई और चीज़ें जो उनके मन में लंबी योजनाएं हैं, वो सब पूरी होंगी. और जिन चीज़ों की बुनियाद रखी गई है वो उसको आगे पूरा होगा. जैसे मोदी जी अपने भाषणों में कहते थे कि मैं केवल शिलान्यास नहीं करता, उद्घाटन भी करता हूँ. तो वो चीज़ें जो कुछ अभी रह गई है अधूरी, वो निश्चित रूप से इस तीसरे कार्यकाल में पूरी होगी. और ये अपने आप में एक लंबा अचीवमेंट होगा. पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार इतने लंबे समय तक कोई एक आदमी बना नहीं प्रधानमंत्री. और लगातार तीसरी बार कोई एक पार्टी एक लीडर के नेतृत्व में चुनाव जीती नहीं. जो कांग्रेस की त्रासदी यही है कि वो तमाम प्रयास के बावजूद परफॉर्मेंस निश्चित रूप से इस बार सुधरा है, लेकिन 10 साल राज करने के बाद 15 साल से लगातार वो पीछे ही जा रहे हैं. तो इसलिए वो उनके लिए चिंता का विषय है. और ये बड़ा अचीवमेंट नरेंद्र मोदी और उनकी टीम या भाजपा या जो भी लोग संगठन के काम में लगे हैं, उनके लिए अचीवमेंट है कि आलोक जी, विजन, इंडिया को लेकर जो विजन आ गया, उसके लिए जी क्या देखिए, मैसेज है? इतने सालों में पहली बार हमारे देश के एक प्रधानमंत्री ने एक डेवलप्ड इंडिया, विकसित भारत की बात की. हम ग्रोथ की बात तो करते थे, लेकिन ग्रोथ कितनी होती थी और उसकी तरफ कितना पॉजिटिव एफर्ट लिया जाता था, वो बहुत ही लिमिटेड था, जिसकी वजह से हम पिछड़ गए और पीछे जाते ही जा रहे थे रिलेटिवली. और हमने सिर्फ, प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ विकसित भारत की बात ही नहीं की, उसके लिए अनेकों कदम उठाए सब डायरेक्शन में. सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, बट कल्चरल डेवलपमेंट की भी बात की, एक नेशनल आइडेंटिटी की भी बात की, उसमें भी एक डेवलपमेंट आना चाहिए. पॉलिटिकल करेक्टनेस जहाँ पे ये चाहिए कि अपने लॉज वगैरह जो हैं वो यूनिफाइड होने चाहिए, वो सब, तो वो सारे एस्पेक्ट्स पे उन्होंने बात की, जिसकी वजह से कलेक्टिवली देश आगे जा सकता है. That's right, sir. We'll continue that discussion. But joining us again right now is Mr. Anil Agarwal, former member of the Rajya Sabha from the BJP. Sir, welcome back. Can you hear me, sir? Thank you. I can see that smile on your face, sir. Hello. Yes, sir. I said I can see that smile on your face, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Sir, here in the studio, we are analyzing, of course, the reasons, the factors
that are leading to these numbers that are coming in from the Election Commission, of course. And while we're analyzing the factors, of course, a decisive leadership for the BJP, delivery of goods and services for the people on the ground, these two are big factors. What are your factors, you think, that you've analyzed that have led to these numbers? नहीं, देखिए अभी हम लोग अभी रिसेंटली वी हैव क्रॉस 305, लेकिन हम लोग की जो उम्मीद थी वो इससे बहुत ज्यादा थी। हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो इस देश के लिए विजन देखा है 2047 तक विकसित भारत, शायद पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं कहा। इकोनॉमी की बात, इंफ्रास्ट्रक्चर करके दिखाना, ये माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। कुछ स्टेट में हम लोगों ने स्वीप भी किया है जहां पे हम 100% सीटें जीत रहे हैं। लेकिन मैं चूंकि उत्तर प्रदेश से आता हूं, उत्तर प्रदेश के बारे में मेरा ज्यादा कंसर्न है। उत्तर प्रदेश में हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि हम लोग 75 के आसपास सीटें, 70 से 75 सीटें जरूर जीत लेंगे, लेकिन हम नहीं जीत पाए। माननीय मोदी जी, मुख्यमंत्री जी ने बहुत मेहनत की है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत मेहनत मिला है उनको। लेकिन मुझे लगता है जो प्रदेश का संगठन था वो उतनी मजबूती से केंद्र की योजनाओं को नीचे तक नहीं उतार पाया। जो केंद्र सरकार की मंशा थी वो नीचे तक नहीं जा पाई है, उसी का ये कारण है। नहीं तो जो पिछली बार अगर आप देखें, सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों इकट्ठी थी, लोकदल इकट्ठा था, तब हम लोग बहुत अच्छा कर पाए। इस बार उतना नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए भी मंथन का, चिंतन का विषय है। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व को मैं सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं माननीय मोदी जी को, कि उनके नेतृत्व की वजह से, उनके हार्ड वर्क की वजह से हम लोग तीसरी बार एक इतिहास बनाने जा रहे हैं। किसी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। इसकी सभी कार्यकर्ताओं को, देशवासियों को बधाई भी देता हूं। बिल्कुल अनिल जी, जैसे आपने कहा कि उत्तर प्रदेश को लेकर आप ज़्यादा बात करेंगे, जो बड़े फैक्टर्स आप समझ पाए, उत्तर प्रदेश में नतीजे उस तरह से मन मुताबिक नहीं रहे, मतदाता भी उतनी संख्या में बाहर नहीं आया, क्या ये हम कहें कि एक निश्चिंत होने वाली स्थिति भी रही थी एक उत्तर प्रदेश को लेकर? नहीं, एक तो सब लोग ओवर कॉन्फिडेंस में रहे, ये बात मैं आपकी से सहमत हूँ, और कार्यकर्ता ने मेहनत की है। लेकिन जो एक प्रदेश संगठन का एक जो काम था वो शायद हम उतना बखूबी नहीं कर पाए। केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत अच्छा काम किया है, और माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के दौरे किए हैं, हमारे योगी जी ने उत्तर प्रदेश में दौरे किए हैं, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे हमने 100% मार्क्स प्राप्त किए हैं। सेंट्रल लीडरशिप के अगर बात करें तो विकसित भारत, इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारा काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। लेकिन प्रदेश संगठन हमारा उसको नीचे तक नहीं उतार पाया, जिसके कारण से मुझे लगता है ऐसा हुआ है। बिल्कुल। मनोज जी, आप कुछ अनिल जी से पूछना चाहेंगे? आलोक जी? नहीं, तो ये संगठन में कमजोरी है, ये चुनाव प्रचार के दौरान उसको ठीक करने की कोशिश नहीं की गई। अनिल जी तो कह रहे हैं कि प्रचार के लिए तो पूरा जोर लगाया गया, प्रचार में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। आप जिस तरह से अनिल जी कह रहे हैं कि संगठन में थोड़ी खामी रही है, वहाँ एक तरह से अति आत्मविश्वास का माहौल रहा, और जो संदेश जनता तक या कहें बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक पहुंचना चाहिए था वो उस तरह से नहीं पहुंच पाया। आप यही बड़ा फैक्टर मान रहे हैं, तो क्या ये प्रचार के दौरान इसे पूरा किया जा सकता था? देखिए, प्रचार के दौरान केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत मेहनत की है। माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार से रैलियां की हैं, उसमें जिस प्रकार से लोगों तक मैसेज पहुंचा है। लेकिन देखिए, रैली में किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर आप देखें 1.5, 2, 3, 4, 5 लाख के लोग आ जाएंगे। वोटर होता है 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, बाकी 20 लाख तक तो मैसेज पहुंचाना प्रदेश संगठन का काम है ना, वो नहीं मुझे लगता है हो पाया, जिस वजह से ये स्थिति बनी है। बिल्कुल, और वही तो संगठन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक अच्छा काम करके गया अनिल जी, और इसीलिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो नतीजे रहे, खासतौर से आप मानते हैं कि वो संगठन की मेहनत का नतीजा रहे हैं, वो भी एक फैक्टर बड़ा रहा है? देखिए, प्रदेश संगठन का बहुत बड़ा रोल होता है। केंद्रीय संगठन का अपना अलग महत्व है, प्रदेश संगठन का अपना अलग महत्व। बिल्कुल, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। केंद्रीय संगठन ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन प्रदेश संगठन उसको नीचे तक नहीं उतार पाया।
देखिए इतना काम हुआ है, विकसित भारत हम लोग ले जाने की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी हम 5वें नंबर पे ले आए, 3रे पे ले जाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया। बिल्कुल अनिल जी, और क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप इकोनॉमी को बहुत अच्छे से समझते हैं। जी अनिल जी, आप इकोनॉमी को बहुत अच्छे से समझते हैं, आपका एक बड़ा बैकग्राउंड रहा है इसमें, तो ये मैं जानना चाहूंगी ये जो इकोनॉमिक क्रेडेंशियल्स रहे, हम लगातार फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहे, डिस्पाइट द ग्लोबल जो ग्लूम था उसमें इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ शाइनिंग स्टार, तो जो इकोनॉमिक पैरामीटर पर आपकी सरकार का परफॉर्मेंस रहा है उसका आप कितना रिफ्लेक्शन देखते हैं इन रिजल्ट्स पर या इन ट्रेंड्स पर जो अभी आ रहे हैं? नहीं देखिए, मैंने कहा ना इसका बहुत असर है, लोगों को बेहतर इनकम हुई है। आज कहता कोई भी कुछ रहे, लेकिन जैसे लोग कहते थे कि साहब महंगाई है, तो मैं स्पष्ट किया हूं कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में महंगाई 5% पे कंट्रोल रही है, जबकि पहले 11% महंगाई रही है मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में। तो आप कंपेयर कर सकते हो ना, 18 करोड़ का बजट 48 करोड़ का हो गया, इसका मतलब 30 लाख करोड़ जो बढ़ा है बजट में, तो उसमें कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा आ रहा है, इकोनॉमी बढ़ रही है, लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि हम 125 करोड़ से 140 करोड़ हो गए, 15 करोड़ बढ़ गए। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। इस बीच में पंडित नेहरू ने कहा था कि अरे साहब कहीं भी कोई अंतरराष्ट्रीय घटना होती है उसका असर होता है। हिंदुस्तान अगर आप देखें उसकी पोजीशन, दो बड़े युद्ध हो रहे हैं, उसके बाद भी हम लोग अपनी इकोनॉमिक रफ्तार को बरकरार रख पाए हैं, 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, फ्री वैक्सीन दी है। तो ये सारी चीजें हैं जो वोट मिला है, नहीं तो तीसरी बार बहुत तगड़ी इनकम्बेंसी हो सकती थी। मैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने इतना सब अच्छा किया है जिसकी वजह से हम यहाँ तक खड़े हो पा रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लगातार जैसे कि हम बात करते आए हैं मनोज जी की डिसाइसिव एक लीडरशिप है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा एनडीए के लिए या बीजेपी के लिए। नहीं, वो निश्चित रूप से रहा, लेकिन अभी जैसे अनिल अग्रवाल जी से मैं सहमत नहीं हूँ। और संगठन में और अगर पार्टी में अगर तालमेल का अभाव था तो उसको दूर करने के लिए काफ़ी समय था। 5 फेज में चुनाव हुए, जो पहला फेज हुआ तभी से सिग्नल आने लगे कि चुनाव में मतदाता बहुत नहीं निकला, तो हो सकता था। लेकिन जो दूसरी बात जो आप कह रही हैं कि वो राष्ट्रीय छवि, वो निश्चित रूप से उसका फायदा मिला है, और वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर पूरे देश में था, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, कि जो एक वैश्विक जो देश का मान सम्मान बढ़ा है। अब कोई कल्पना कर सकता था कि 2 देशों में युद्ध हो रहा है और उसमें भारत के प्रधानमंत्री से अपेक्षा की जा रही है कि वो हस्तक्षेप करके मध्यस्थता करें, और ऐसे देश जो भारत से भी ताकतवर देश माने जाते ग्लोबल पावर्स माने जाते थे। तो इसलिए ये स्थिति जो बनी है वो एक दिन में नहीं बनी, और न जिस नेता ने बनाई वो एक दिन में बनाई, उसने लगातार 24 घंटे काम करके 365 दिन लगातार प्रयास करके ये छवि बनाई है, और इससे देश का मान सम्मान बढ़ा है। अब निश्चित रूप से ये स्थिति है कि हम अपना पहले ही फैसले अपने से लेते थे, लेकिन अब 16 आने अपने से हम फैसले ले रहे हैं। हम किसी विदेशी देश या जो अपने को थानेदार मानते हैं उनकी तरफ हम नहीं हाथ जोड़ते हैं कि भैया आप कृपा करोगे तो हम अपने घर में अनाज पैदा करेंगे। जी बिल्कुल अनिल अग्रवाल जी, जैसा कि ये चर्चा हो रही है कि सिर्फ लोकल फैक्टर्स नहीं रहे, जो वोटर्स थे उनमें ये भी बहुत जबरदस्त एक नोशन रहा कि किस तरह से भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है उसमें जो सुधार हुआ है, जो वो एक दैट रॉबस्ट फिगर ऑफ इंडिया which has emerged, I think that also has played a crucial role. Your thoughts, sir? अपनी बात कहना चाहूंगा। देखिए, माननीय मोदी जी का जो काम था उन्होंने बहुत अच्छा किया है, उस पर कहीं कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता, चाहे अंतर्राष्ट्रीय छवि हो, चाहे इकोनॉमी है, चाहे जो। लेकिन वोटर को बूथ तक तो ले जाना प्रदेश संगठन का काम नहीं है। आप मुझे बताइए, जिला संगठन का काम नहीं है। अगर हम अपना पोलिंग परसेंटेज बढ़ा लेते तो निश्चित रूप से हमारी स्थिति आज इतनी खराब नहीं होती जो स्थिति हमारी खराब हुई है। हम लोग 75 सीटें जीतने में सक्षम थे। हम लोग पोलिंग परसेंटेज अगर घटा है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मोदी जी तो जिम्मेदार नहीं हो सकते, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो जिम्मेदार नहीं हो सकते। इसके लिए तो जिला संगठन और जो हमारे बाकी लोग हैं प्रदेश स्तर पर वही जिम्मेदार है ना, जिसकी वजह से आज हम इस स्थिति में हैं। नहीं तो हम 75 सीटें जीतते उत्तर प्रदेश से साहब।
सर पर माननीय देश मोदी में जी तो ने जो काम किया है वो अद्भुत है, उसके बारे में ना भूतो ना भविष्यति। इतना काम किसी प्रधानमंत्री ने किया ही नहीं है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने दिन रात काम किया है। हमारे गृह मंत्री जी ने कितनी रैलियां की है, कोई सोच सकता है? तो सर, ये आप सब उत्तर काम प्रदेश है, की बात लेकिन कर रहे हैं। वोटर को वोट तक तो ले जाना तो हमारा जो प्रदेश संगठन है, जिला संगठन है, नगर संगठन है, उसका काम है। उसमें हम लोग पीछे रहे हैं। सर, आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, पर जो देश के आंकड़े आ रहे हैं फिलहाल तो एनडीए ऐसा लग रहा है कि 300 के पार जा ही रही है। नहीं बिल्कुल, लेकिन ये 400 जा सकता था। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, अगर उत्तर प्रदेश से हम और बेहतर करते, जो माननीय मोदी जी का संकल्प था, हर कार्यकर्ता का संकल्प था, हम 400 जाएं तो और अच्छा होता। इस देश को माननीय मोदी जी के नेतृत्व की आवश्यकता है। कड़े फैसले लेने के लिए नंबर्स की आवश्यकता होती है। आप तो पार्लियामेंट कवर करती रही हैं, तो आपने देखा है राज्यसभा में किस तरह से जब कड़े फैसले हुए कितना मैनेजमेंट करना पड़ता था। अगर वो स्थिति बेहतर होती राज्यसभा लोकसभा में तो हम और बेहतर परफॉर्मेंस कर पाते। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि बेहतर हुई है, इसमें कोई मतलब प्रश्न है ही नहीं। अमेरिका और रशिया दोनों से हमारे अच्छे संबंध है। आज भारत सब कुछ होते हुए भी अपनी नीतियां जो है अपने हिसाब से तय कर रहा है। रशियन प्रेसिडेंट कह रहा है कि मोदी जी एक भी निर्णय ऐसा नहीं ले सकते जो भारत के विरोध में हो। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन फिर भी हम 400 नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, इसका तो एनालिसिस होना चाहिए ना। बिल्कुल अनिल जी, बहुत अच्छी बात है कि आप बिल्कुल जो लक्ष्य है वो बड़ा लेकर चल रहे हैं और उम्मीदें जो है वो भी बड़ी लेकर चल रहे हैं। और आप ये कह रहे हैं कि हाँ, जो आंकड़ा अभी दिख रहा है ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा में तब्दील हो सकता था। फिलहाल अनिल जी, जैसा हम जानते हैं कि लगातार ये बात कही जाती है कि जो एनडीए की सरकार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, वो लक्ष्य तो तय करती ही है, उन्हें हासिल करने के लिए भी समय से पहले काम करती है। हम जानते हैं कि जो अगले 100 दिन का एजेंडा होगा सरकार बनने के बाद, ये जो ट्रेंड्स हैं वो नतीजों में बदलते हैं, तो उस पर भी काफी बातें हो रही थी। तो हम देख सकते हैं कि जल्द ही आप लोग उस मिशन मोड में काम तुरंत शुरू भी कर सकते हैं। नहीं देखिए, सरकार बनने जा रही है, इसमें कहीं कोई शंका किसी को होनी ही नहीं चाहिए। हम लोग बहुत कंफर्टेबल मेजोरिटी से सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन हम लोग 400 के लिए काम कर रहे थे। इस गर्मी में भी हम लोग ने पूरा मेहनत किया है, तो हमारी अपेक्षाएं ज्यादा थी, लेकिन सरकार तो हमारी बनने जा रही है। और आज मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व और उनकी क्षमता का दूसरा व्यक्ति इस देश में है ही नहीं। कोई इसको कुछ भी समझ सकता है, लेकिन ये स्पष्ट है। आपने 10 साल पहले यूपीए की भी सरकार देखी, एनडीए की भी सरकार देखी, दोनों का अगर आप काम का एनालिसिस करें, जमीन आसमान का अंतर है। क्या तो एनडीए का, मोदी जी के अनिल जी, नेतृत्व की एक आखिरी सवाल, एनडीए का कुनबा बढ़ाने की कोशिश होगी क्या? देखिए, ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि किस प्रकार से हमें आगे जो एक वो लगा है कि भाई हम 400 नहीं कर पाए हैं, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मेरा जो पार्टी मुझे दायित्व देगी मैं उसे बखूबी निभाऊंगा। चुनाव प्रचार का काम मेरे जिम्मे था, मैंने उसे बखूबी निभाया है। सुबह से रात तक मैंने काम किया है, हर कार्यकर्ता ने काम किया है। लेकिन जो कौन जाएगा कौन आएगा ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, इसमें हम लोग की कोई भूमिका नहीं है। अनिल जी, ये एक जानने की कोशिश है कि लगभग 300 सीट तो एनडीए के साथ बीजेपी को आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी का अपना नंबर जो है वो 250 के करीब सिमटता हुआ दिख रहा है। ये कितना प्रभाव डालेगा एक नई जो सरकार जो बनने जा रही है उसमें, क्योंकि ये पहली बार होगा कि बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में, शायद जो ट्रेंड्स दिख रहे हैं उसके अनुसार अगर आप बात करें, अब 1-2 बजे का वक्त हो चला है, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है ये ट्रेंड बहुत ज्यादा बदलने वाले नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी खुद अपने दम पर शायद सरकार बनाने की स्थिति में ना आ पाए, लेकिन एनडीए के रूप में नहीं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, देखिए अभी कुछ देर पहले अगर आप देखें तो एनडीए की सीटें जो टीवी पे दिखा रहे थे 290 दिखा रहे थे, अब 300 क्रॉस कर गई है। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं
बीजेपी की सीटें 272 से 100% ज्यादा आएंगी, उसमें कहीं कोई संशय नहीं है। लेकिन माननीय मोदी जी का स्पष्ट मत है कि जो हमारे सहयोगी हैं, हमारी 14-19 में स्पष्ट सरकार थी, फिर भी हमने सहयोगियों को साथ रखा, इस बार भी हम सहयोगियों को साथ रखेंगे। लेकिन बीजेपी की जो मेजोरिटी है वो स्पष्ट आएगी ही आएगी, इसमें कहीं कोई किसी को संशय नहीं होना चाहिए। घंटे भर बाद स्थिति आपको भी स्पष्ट हो जाएगी साहब। In the meanwhile, we are joined by senior journalist Sandeep Phukan. Sandeep, how do you see the trends and the results that tentative results we can say now that are going to come after for the 18th Lok Sabha? Well, I think I agree with Anil ji when he was saying that there shouldn't be any problem in forming the government. The NDA is in clear majority. You only need 272 to form the government. So, insofar as formation of the government is concerned, I don't see a problem. But the issue Just to inform, there was some breaking news on other channels.